Good morning, student. I'm your Stephen sir from ICRA English Medium. Today I'm going to teach you subject English, standard 6th, and book which I'm going to use is a Pact with the Sun, chapter number 5, Tansen. So Tansen basically it's a name. It doesn't have a meaning, okay? So Tansen was the only child of his parents, naughty but talented. He imitated the calls of birds and animals perfectly. Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. So here 3 points. Here these 3 points which you can say it's talking about Tansen. He was the only child of his parents. He was naughty and talented. Naughty means mastikhor. Naughty means mastikhor. But talented, gyani. And here what they are trying to say that he was talented. Why? Because he could create a sound like animals and birds. And one time he tried to frighten the travelers. Traveler मतलब जो मुसाफिरी घूमने के लिए आते हैं वो उनको डरा दिया था. कैसे? रोरिंग करके. रोर कौन करता है? टाइगर. टाइगर जो गुर्राता है, आवाज़ करता है वो. You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. Tansen name you might have heard in the history of a musician. He was a very well known and famous musician in our country. Singer. A singer called Mukundan Misra and his wife lived in Behat near Gwalior. Tansen was their only child. So Tansen's father's name was Mukundan Misra, where they were living Behat near Gwalior. Okay. It is said that he was a naughty child. Naughty means I told you mastikhor. Often he ran away to play in the forest. वो भाग जाता था प्ले करने के लिए, खेलने के लिए या गाने के लिए. किधर? फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मतलब जंगल. And soon learned to imitate perfectly the calls of the birds and animals. Imitate मतलब एकदम हूबहू किसी की नकल उतारना आवाज़ में. तो वो किसकी नकल उतारता था? बर्ड्स एंड एनिमल्स की. ओके. एज यू कैन सी ये पिक्चर में देख सकते हैं कि कुछ ट्रैवलर्स आए थे तो उसने गुर्राने की आवाज़ की तो सब भाग रहे हैं. अ फेमस सिंगर नेम स्वामी हरिदास was once traveling through the forest with his disciples. तो एक दिन की बात है, जो स्वामी हरिदास है वो ट्रैवलिंग कर रहा था, वो सफ़र कर रहा था जंगल के थ्रू से. किधर से? जंगल के थ्रू से. किसके साथ? अपने डिसाइपल्स के साथ. डिसाइपल्स कौन होते हैं? चेले. जिसको अपने चेले बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? डिसाइपल्स. Tried to group settle down to rest in a shady grove. Tansen saw them. So उन लोग सफ़र कर रहे थे तो उन लोग थक गए तो जंगल में एक छाँव थी, पेड़ के नीचे जाके उन लोग आराम कर रहे थे. तो तानसेन ने उनको देखा. Strangers in the forest, he said to himself. तानसेन ने जैसे देखा बोला अजनबी जंगल में आए हैं, अरे वाह. इट विल बी अ फन टू फ्राइटन देम. उसने बोला कि यार मज़ा आएगा अगर इनको अपने डराएंगे तो. ही हाइड बिहाइंड अ ट्री. हाइड का मतलब है छुप जाना. हाइड का मतलब है छुप जाना. तो उसने जैसे देखा तो एक पेड़ के पीछे छुप गया. जैसे वो एक
जैसे वो एक फोटो में देखा होगा कि पेड़ के पीछे छुप जाता है। He hid behind a tree and roared like a tiger. टाइगर की आवाज़ निकालने लग गया। The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. Scattered का मतलब होता है बिखर जाना, डर के मारे कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है। बट स्वामी हरिदास जो है सबको बोलते कि भाई तुम लोग साथ में रहो। डोंट बी अफ्रेड ही सेड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। तो हरिदास ने बोला कि भाई टेंशन मत लो, सब साथ में रहो, टाइगर हमेशा की तरह खतरनाक नहीं होते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस। सडनली वन ऑफ हिज मैन saw a small boy hiding behind a tree. उन्होंने देखा कि भाई उनका ही उन्होंने क्या देखा कि एक लड़का जो है वो पेड़ के पीछे छुपा है। There are no tigers here, master, he said, only this naughty boy. तो भाई देखा, बोला कि भाई कोई टाइगर वाइगर नहीं है, ये एक मस्तीखोर लड़का है। Swami Haridas did not punish him. He went to Tansen's fathers and said, your son is very naughty. He is also very talented. I think I can make him a good singer. तो हरिदास ने क्या किया, हरिदास जो है वो तानसेन के पापा के पास गया और तानसेन के पापा को बोला कि भाई तुम्हारा लड़का बहुत नॉटी है, बहुत मस्तीखोर है, मगर उसके अंदर टैलेंट भी है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है, गायक बन सकता है। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तो 10 साल का था तानसेन जब वो हरिदास के साथ चला गया। He lived with him for 11 years, learning music and became a great singer. तो तानसेन हरिदास के साथ, स्वामी हरिदास के साथ 11 साल उसने प्रैक्टिस की, सिंगिंग की, गाना गाने की, और एक बहुत बड़ा कलाकार वो बन गया। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, और उसी दौरान उसके माता पिता की भी डेथ हो गई थी। मुकुंदन मिश्रा's dying wish was that Tansen should visit मोहम्मद गौस of Gwalior. Muhammad Ghaus was a holy man. So तानसेन मुकुंद मिश्रा के फादर की एक आखिरी इच्छा ये थी कि तानसेन जो है वो एक बार मोहम्मद गौस जो ग्वालियर में है वहाँ पे जाए। तो मोहम्मद गौस कौन थे? मोहम्मद गौस एक होली मैन थे, एक पवित्र इंसान थे। मुकुंद मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम and often visited him. While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Marijanian, who was a great musician herself. So तानसेन के पापा चाहते थे कि वो वहाँ जाए, किधर? ग्वालियर में, और वहाँ पे भी एक कोर्ट था जहाँ पे रानी मार्जिनियन है जो एक म्यूजिशियन है। There he met and married one of the ladies of the court. तो वहाँ पे गया, वहाँ पे उनकी सभा में उनसे शादी की। Her name was हुसैनी, उसका नाम हुसैनी था। हुसैनी also became स्वामी हरिदास disciple, तो हुसैनी भी उसकी चेली बन गई। तानसेन and हुसैनी had 5 children who were all very म्यूजिशियन। तो तानसेन और हुसैनी दोनों ने शादी की और उनके 5 बच्चे थे, वो लोग भी म्यूजिशियन लाइन में आ गए। तानसेन had by this time became a very famous. Sometime he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court.
तो तानसेन जो है वो बड़े बड़े राजा महाराजा के लिए गाना गाते थे। तो जो अकबर थे, अकबर के सामने भी उन्होंने एक बार गाना गाया तो वो बहुत खुश हो गए और एम्परर अकबर ने तानसेन को बोला कि तुम हमारा जो सभा है उसमें ज्वाइन हो जाओ, जुड़ जाओ हमारे अदालत में। Tansen went to Akbar's court in 1556 and soon became a great favorite of the emperor. Akbar should call upon Tansen to sing at any time during the day or night. तो उन्होंने 1556 में उनकी जो सभा थी उसको ज्वाइन किया और अकबर कभी भी अकबर का मूड होता था दिन में या रात में तो वो उससे गाना गवाते थे। Quite often he would just walk into the Tansen's house to hear him practice. He also gave him many presents. Some of the countries became jealous of Tansen. तो राजा उससे खुश होके, एम्परर अकबर उससे खुश होके उसको बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह देते थे और ये सारे जो आजू बाजू की जो कंट्रीज थी वो बहुत जलती थी तानसेन से। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज ruined. They declared one of the countries, Shaukat Mian, had a bright idea. Let us make him sing Raga Deepak, he said. How will that help us? Asked another man. तो दूसरे कंट्री लोग प्लानिंग कर रहे थे कि भाई तानसेन का पत्ता साफ करें, यानी कि तानसेन को हटाए। तो शौकत मियान, एक कंट्री में शौकत मियान करके एक था, उन लोग के दिमाग में आइडिया आया। उन लोग बात करते थे, बोलते थे कि यार इसको एक रागा दीपक करके गाना गवाते हैं। If Raga Deepak is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burned to ashes. Tansen is a very good singer. If he sings Raga Deepak, he will die. तो बहुत जन बोल रहे थे कि अगर उसको रागा दीपक गवाएंगे तो भाई वो मर जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ताकत लगती है। He will die, वो मर जाएगा अगर ऐसा किया तो। He will die, will be rid of him. Shaukat Mian went to Akbar and said, we won't think Tansen is a great singer, let us test him. तो शौकत मियान गया अकबर के पास। उसने अकबर को बोला कि हमको नहीं लगता है जो तानसेन जो है बहुत बड़ा गायक है, सिंगर है, चलो उसको टेस्ट करते हैं। टेल हिम टू सिंग रागा दीपक। तो जो शौकत मियान था उसने बोला कि उसको बोलो कि रागा दीपक गाना गा के बताए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। बोला कि भाई जो महान सिंगर है वही उसको गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। अकबर ने बोला कि भाई वो तो कुछ भी गा सकता है। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग। वेरी वेल माई लॉर्ड, he said, but give me time to prepare myself. Tansen went home. He had never been more downcast and unhappy. तानसेन ने टाइम मांगा कि भाई ठीक है मैं गाऊंगा मगर मुझे थोड़ा टाइम दो, क्योंकि तानसेन इज्जत खराब करना नहीं चाहता था, ना खुद की ना महाराजा की। तानसेन वेंट होम। ही हैड नेवर, वो घर पे गए थोड़ा नाखुश थे। आई कैन सिंग द रागा, ही टोल्ड हिज वाइफ। वो घर पे गए, अपनी वाइफ को बोला मैं रागा गा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। बट आई हेट इट, गिव ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस। वो बोला कि अगर ऐसा मैं गाऊंगा तो भाई मैं जल जाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी लगती है। Then he had an idea, if someone sing raga meg at the same time and sing it properly, it will bring rain. Perhaps our daughter Saraswati and her friend Rupavati could do it, he said. He thought that the two girls to sing raga meg, they practiced night and day for 2 weeks. Tansen told him, you must wait till the lamps start burning and then you start singing. The legend goes that on the appointed day,
The whole town assembled to hear Tansen sing Raga Deepak. When he began to sing, the air became warm. Soon people of the audience were bathed in perspiration. The leaves of the tree dried up and fell to the ground. As the music continued, birds fell dead because of the heat, and the water in the river began to boil. People cried out in terror as flames shot up out of the nowhere and lightened the lamp. अब कैसा था इसमें कि अगर ये गाना कोई गाए तो गर्मी पैदा हो सकती है, पत्ते झड़ सकते हैं, इतनी गर्मी होगी कि जो बर्ड्स उड़ रहे होंगे वो भी मर जाएंगे. At once Saraswati and Rupavati began to sing Raga Megh. तो अब इससे बचने के लिए तानसेन ने अपनी जो बेटियां थी उनको, वो दोनों बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते थे राग मेघ. तो राग मेघ में क्या होता है, बारिश होती है, ऐसा करके कुछ है. द स्काई क्लाउडेड ओवर द रेन केम डाउन. तो रेन जो है बारिश हुए वो उस वक्त गिरने लग गई. तानसेन वॉज सेव्ड. द स्टोरी गोज दैट was very ill after this, and Akbar was sorry that he had caused him so much suffering. He punished Tansen's enemies when Tansen, तो क्या हुआ कि भाई राजा को समझ में आ गया कि भाई ये गाना जो है वो क्या है, वो सिर्फ उसका टेस्ट लेने के लिए था. तो राजा को समझ में आया और राजा ने तानसेन के जो दुश्मन थे उसने उसको सज़ा दे दी कि भाई ऐसा मत करो. When Tansen got well, तानसेन बीमार भी पड़ गया था, फिर ठीक हो गया. The entire city rejoiced. Tansen remained Akbar's court singer till 1585 when he died. He composed several new ragas. Tansen tomb is in Gwalior. It is a place of pilgrimage for musicians. तो वो 1585 में मर गए और उनका जो कब्र है वो ग्वालियर में है. अभी भी बहुत सारे लोग जाते हैं. सो ये था एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का. थैंक यू सो मच.